1.6 ट्रूथ टेबल क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं. प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी मतलब स्टेटमेंट पैटर्न के सारे ट्रूथ वैल्यूज जो है वो टी होने चाहिए. अब हमारे पास पहला स्टेटमेंट है P एंड Q इम्प्लाइज Q. अब देखो यहाँ पे ना दो ही स्टेटमेंट है P Q. तो जब दो ही स्टेटमेंट होते हैं तो आपके पास चार ही केसेस होते हैं, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स. Then we'll say P and Q. This is conjunction. Truth value of conjunction is it is always true. It is true only if P and Q are true, otherwise it is false. So T is T, TF is F, TF is FT is F, FF is F. Now P and Q implies Q. तो आपको ये implied ये लेना पड़ेगा. ये implied ये लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि implication में only TF is F, all other are true. तो ये हो गया T implies P implies P and Q implies Q, तो T implies T, तो ये क्या हो गया T. F implies F, ये T. F implies T is T, and F implies F is again T. As all the truth value of the given compound statement is T, hence it is tautology. Are we getting this? It's very, very simple. This is true, true, false, false, true, false, true, false. ऐसे अगर हम लोग लेंगे तो हर केस चेक होता है. Now I want to find out this whole. तो आप एक एक पॉइंट को सॉल्व करोगे. First find out this P implies Q. P implies Q. Implication में only TF is F, otherwise everything is true. So TF, TT. Now I want negation Q implies negation P. So I'll first find out negation Q. It is FT, FT. Then I'll find out negation P. It is FF, TT. Negation Q implies negation P. F implies F. Implication F implies F is true. Negation Q implies negation P. F implies F is true. T implies F is F. क्योंकि ये तो F ही होता है. F implies T is T. T implies T is T. Now we'll find out this whole thing. It means P implies Q. ये एक statement है. One statement is in double implication with another statement. तो अब ये क्या होगा? P implies Q. Negation Q implies negation P. T double implies T is T. F double implies F is T. T double implies T is T. T double implies T is T. So as all the truth values are T, hence it is a tautology. ये लिखना पड़ेगा end में आपको as an answer. ये लिखना पड़ेगा कि all the truth values of given statement are true, hence it is tautology. Board exam में it's very important that you will write down the answer. क्योंकि जब आप ये फाइनल आंसर लिखते हो तो उससे पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया है खुद को टॉपिक. एग्जाम इज नॉट अबाउट स्कोरिंग मार्क्स, इट्स अबाउट टेस्टिंग योर ओन नॉलेज. मार्क्स तो आउटकम है उसका. ओके now let us go ahead with the next one. तो ऐसे जब सम्स आते हैं, जब वो लोग आपको बोलते हैं कि प्रूव दैट इट इज टॉटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिंजेंसी, तो आपको करना क्या है? आपको बस उस ट्रुथ टेबल को निकालना है, सॉल्व करना है.
एंड उसके लास्ट में जो भी आता है, अगर टीटीडीटी आया तो टोटोलॉजी, एफएफएफएफ आया तो कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर एफटी का कुछ कॉम्बिनेशन आया तो इट विल बी कंटिंजेंसी। तो ये क्वेश्चन 3 का थर्ड और फोर्थ आप लोग करेंगे। क्वेश्चन 4 द सेम, प्रूव दैट ईच ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन, हैव अ ट्रुथ टेबल। अगर वो एफएफएफएफ आता है तो वो कॉन्ट्राडिक्शन है या उसको पॉलिसी भी कहा जाता है। लेट मी टेल यू देयर इज वन मोर नेम, पहले उसको पॉलिसी भी कहा जाता था या कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्वेश्चन 4 भी आप सॉल्व करेंगे, हम लोग बस क्वेश्चन 5 का जो डाउट है विल टेक दैट मच। तो क्वेश्चन 5 का डाउट क्या था? क्वेश्चन 5 का सेकंड, this is P implies Q, double implication, negation P और Q। ये ट्रुथ टेबल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉजिक का, because there is only P and Q, so we will have P, we'll have Q, we'll have P implies Q, we will have negation P or Q. This is true, true, false, false, true, false, true, false. P implies Q is true. Implication is true only for all other cases. Only for TF it is false. This is true, false, true, true. See, TT is T. If P then Q, if T then T, yes. If T then F, no, this is false. If F then T, there is no requirement. If P is only F, then we are not concerned with Q. So these are also true. Then next negation P. So this will be F, F. T, T. Now negation P और Q. डिसजंक्शन में अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो पूरा डिसजंक्शन ट्रू है। तो T F is T, F F is F, T T is T, F T is T. सॉरी, ये डबल इम्प्लीकेशन है क्या? नहीं, अभी तक करना है। सो नाउ वी हैव गॉट दिस ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट हो गया, ये ब्रैकेट हम लोगों ने निकाला, ये वाला ब्रैकेट निकाला। अब ये दोनों ब्रैकेट निकालने के बाद हमको ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट निकालना है, दैट इज P implies Q, डबल इम्प्लीकेशन, negation P और Q. P implies Q, डबल इम्प्लीकेशन, negation P और Q. डबल इम्प्लीकेशन का रूल है TT is T and FF is T, but FT और TF are F. तो डबल इम्प्लीकेशन में अगर P और Q दोनों के भी वैल्यूज सेम होते हैं तो डबल इम्प्लीकेशन ट्रू होता है। लेकिन अगर दोनों स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यूज अलग अलग होते हैं तो डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स होता है। सो नाउ T T is T, F F is T, T T is again T, T T is again T. This is tautology, this is not contingency. See, in double implication what happens is, अगर दोनों का ट्रुथ वैल्यू सेम है तो वो T है, और अगर दोनों का ट्रुथ वैल्यू अलग अलग है तो वो फॉल्स है। तो यहाँ पे तो सब TT आया, तो ये तो टोटोलॉजी बन गया। तो क्या वो कंटिंजेंसी है? नहीं, ये टोटोलॉजी है, इट इज नॉट कंटिंजेंसी। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि एज ऑल द ट्रुथ वैल्यूज आर T, इट इज टोटोलॉजी एंड नॉट कंटिंजेंसी। हमेशा ये आंसर लिखना है आपको। Now again, you know these big brackets, how are you going to solve this? तो हम लोग छोटे छोटे ब्रैकेट से शुरू करते हैं। दो ही स्टेटमेंट है इधर, PQ, TT, FF, TF, TF। तो ये मैं पहले इस ब्रैकेट से शुरू करूंगी।
negation Q, FT, FT. P implies negation Q. इम्प्लीकेशन में ट्रुथ वैल्यू TF होता है तो फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है, तो ये फॉल्स है। TF इज फॉल्स, TT इज T, FF इज T, FT इज T. Then this implies Q. तो P implies Q, implies Q. This implies Q. तो FT is T, TF is F, TT is T, TF is again F. And now we'll have to do P and this. तो ये तो निकाला, अब P and this whole thing. ऐसे टाइम पे ना इसको एक ही स्टेटमेंट मानना है, अभी इसको एक ही स्टेटमेंट मानोगे आप, तो ही आप आगे का कर पाओगे. This is P implies negation Q, implies Q. P and this. So T and T is T. T and F is F. क्योंकि कंजंक्शन में दोनों भी T होंगे तो ही कंजंक्शन T होगा, नहीं तो वो फॉल्स होगा. FT is F, FF is F. So this is TFF. This is contingency. Now logical equivalence. जब दो स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू सेम होते हैं तो वो दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं. इज इक्वल्स टू नहीं बोलते हैं हम लोग, लॉजिकली इक्विवेलेंट होना बोलते हैं. तो लॉजिकली इक्विवेलेंट होने के लिए दोनों में स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम होनी चाहिए. क्वेश्चन 6 का फर्स्ट सम हम लोगों ने दिया है. दे वांट टू प्रूव दैट दिस पार्ट P और Q and R is logically equivalent to P or Q and P and R. P और R. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट साइड प्रूव करेंगे. अब ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप एक ही टेबल में सब निकालो या आप अलग अलग टेबल बनाओ, क्योंकि जगह बहुत बड़ी नहीं होती है पेपर में. तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहले ये RHS का टेबल बनाए और फिर LHS का टेबल बनाए, उसके नीचे नेम देम 1 and 2 and you can prove their equivalence. Now see, PQR 3 स्टेटमेंट है तो हम लोगों को 8 ऑप्शंस लेने पड़ेंगे. T, FF, TAT, FF, TT, FF, TF, 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 TF. Now इसको प्रूव करना है तो मैं पहले Q and R निकालूंगी. Q and R मतलब क्या, कंजंक्शन. Conjunction is true when both are true. So TT is T, TF is F, FT is F, FF is F, TT is T, TF is F, FT is F, FF is F. Now P और Q and R, तो ये और ये, तो T और T डिसजंक्शन में दोनों में से एक भी T होगा तो स्टेटमेंट T है. T और T is T, T और F is T, F और F is T, F और T और F is T, F और T, T, F और F, 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 F. So this is left hand side. Now let us go to the right hand side. P और Q, P और Q दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू. T और T, T, T और T, T, T और F, T, T और F, T, F और T, T, F और T, T, FF, F, FF, F. हो गया. Now I'll find out P or R and then we'll find out conjunction of these two. Now see, after finding out conjunction, you can see that this truth value or the truth value of part 2 is equal to the truth value of part 1. It means that this is logically equivalent to this. टेबल निकालने के बाद अगर ट्रूथ वैल्यू सेम आती है तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंस है. अब दो तरीके हैं आपके पास, एक ही बार टेबल निकालो और ऐसे हॉरिजॉन्टली निकालो, या फिर आप LHS का अलग निकालो, RHS का अलग निकालो और उसको इक्वेट करके दिखाओ. किसी भी मेथड से कर सकते हो. मेरा सजेशन ऐसा है, पहले LHS का टेबल निकालो, उसके नीचे RHS का निकालो और फिर इक्वल करके दिखाओ.
क्योंकि कभी कभी आपके पास इतना लंबा चौड़ा पेपर नहीं होता है कि इतने सारे केसेस उसमें आ जाए, एंड यू मे टेंड टू मेक मिस्टेक देयर. दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू write it in a clean way. सेकेंड इज डन. क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रूथ टेबल ही निकालना है, तो मैं हर सम तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन थर्ड वाला थोड़ा सा अलग है, वहां पे 3 केसेस है जो आपको प्रूव करने हैं. सो आई विल डू इट. निगेशन P implies negation Q. यहाँ पे ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस है. इज इक्विवेलेंट टू P and negation of negation Q is equivalent to P and Q. Now I will take PQ. See here, यहाँ पे बस P और Q का ही निगेशन विगेशन या कंजंक्शन या ऐसा कुछ इम्प्लीकेशन दिया है, तो P और Q 2 ही है, तो मैं ले लूंगी T T F F T F T F. Now I'll first find out this. तो मैं पहले निकालूंगी निगेशन Q. F T F T. Then P implies negation Q. तो ये क्या हो गया? T implies F is F. TT is T. FF is T. FT is also T. अब इसका निगेशन, this is T F F F. Now this is one side. Now I'll find out this. तो निगेशन Q का निगेशन, मैंने ऑलरेडी निगेशन Q निकाला है, तो निगेशन Q का निगेशन निकालेंगे, तो वो हो जाएगा TF TF. Then P and negation of negation Q. P and negation of negation Q. T and T is T. T and F is F. F and T is F. F and F is F. Conjunction. And then I want to find out P and Q. P and Q. अब देखो मुझे क्या क्या प्रूव करना था. So T and T is T. T and F is F. T and F and T is F. F and F is F. Now see this, this, this. Are they same? Yes, their truth value is same, and therefore negation of P implies negation Q is equivalent to P and negation of negation Q is equivalent to P and Q. These are same. इस तरह से हम लोग लॉजिकल इक्विवेलेंस को सॉल्व कर सकते हैं. अगर ये सम्स आते हैं एग्जाम में तो काफी मार्क्स के लिए आते हैं, पकड़ के चलो 4 मार्क्स के लिए ये आते हैं, एंड दे आर वेरी इजी. माय सजेशन इज व्हेनेवर दे कम ऑलवेज सॉल्व लॉजिकल रीजनिंग के सम्स, क्योंकि ऑप्शन में आएंगे. इसको ऑप्शन हो सकता है मैट्रिसेस हो या डेरिवेटिव्स हो, तो ये टेबल निकालना ज्यादा आसान है. आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपको टेबल बहुत अच्छे से निकालना पड़ेगा. Yes, ma'am. So I will first take P and Q, that is TT, FF, TF, TF. Then we'll find out this side. वो होगा P और Q. दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू 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 एंड दिस इज फॉल्स. Then I'll find out negation of this. So negation of P और Q. तो ये होगा F F F T. Then I'll take this negation P
एंड Q। तो इधर मुझे पहले निगेशन P लगेगा, तो हम लोग पहले निगेशन P निकालेंगे। तो ये होगा F F T T। अब हम लोग निकालेंगे निगेशन P एंड Q। तो T एंड F, ये T होगा, F एंड F, ये F होगा, ये T होगा, ये T होगा। Then we'll find out this whole thing, that is negation of P or Q or negation P and Q। तो इसका और इसका डिसजंक्शन ये होगा T F T we have to find out disjunction of negation of P or Q, negation P and Q। FFFT negation P and Q is negation P is F and Q. So TF is F actually, sorry. F into T, so F and T is F. F and F is F. T and T, क्योंकि negation P and Q. So T and T is T, and T and T, F and T is again F. तो ये हो गया F F T F। Now we have to find out disjunction of this and this. F F is F, F F is F, F T is T, T F is T. So this is your table. Now see, they asked us to prove this and negation P. तो ये और ये तो same है. So this is proved. They are logically equivalent.